आई यूज टू से हे भगवान श्री राम मिल गए हैं मुझे कि सब पाप धुल गए जिंदगी के, लगता है नॉट ओनली मी, इवन माई पेरेंट्स, माई far off relatives, doctors, whoever saw the guy, whoever knew about them will be like, oh my god, she is so lucky. He just took out the intercom की तार, दरवाज़ा बंद किया एंड जो उसने मुझे मारना स्टार्ट किया, आई डोंट नो कि क्या हुआ, मेरे अबॉर्शन हो गया, पूरा 40 ml ब्लड कलेक्ट हो गया है एंड आई एम क्राइंग शाउटिंग बचने के लिए। मैं दरवाज़ा खोला है, मेरे इन लॉ सामने खड़े हैं। देन माई फादर इन लॉ केम एंड उन्होंने उसको शराब का एक बैग भर के मंगा दिया कि तू बेटा शराब पी ले और शांत हो जा, कहीं जाना नहीं। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ हर 5 मिनट में आकर के मुझे बोल रही हैं कि कुछ खाने को बना दे, वो खाली पेट शराब पी रहा है, तेजाब बन जाएगा उसको। Thank you, everyone. So first of all, I am Dr. Ananda Sidana, psychiatrist, psychosexual medicine specialist. But I am not speaking here as a psychiatrist or a doctor. I am speaking here on behalf of every woman, because every woman carries a story and everyone has a scar, and that scar tells a story. But I decided to turn my scars into stars. A very contradictory story that one cannot believe that a person of psychiatrist who has read all the textbooks about the marriage, saving marriage, who has been healing the emotions and couple counseling and making people live married life happily, is herself standing as a survivor of gender-based violence, that too not only once but twice. My first dream job at Ibhas, which I had thought in 2010 the moment I took psychiatry that I will definitely get into Ibhas no matter what. That day only, it was like, because my father had a name, the person whom I fell in love with later, he had come to see who is Dr. Roop Sidana's daughter, who is that girl. And he went. And after that, we started becoming friends. He was the first friend I got there. And every time he will be around me, every time getting me, like even small thing I need, small patients help, whatever I need, he will be the most helping guy there. And then I started falling in love that yes, he helps me a lot, and for me the intelligence is the only criteria to fall in love. And he was the most intelligent guy, topper of first ranker, plus he was a very romantic person. He such a romantic person that me being so fat that even in a bar or a birthday parties where all the senior residents of Ibhas are there, even teachers are there, he didn't hesitate. He could even pick me up in the lap and dedicate songs to me everywhere, like every corner of the Delhi, everywhere I remember. It was the love marriage first night. I was very happy and in a romantic mood. और एकदम से मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि उसने मेरे थप्पड़ मार दिया एंड उसके बाद स्पिट इट ऑन माय फेस एंड आई वाज शॉक्ड एंड फ्रोजन और एक ही जगह पे बैठी थी एंड मैंने मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं कि एकदम से क्या हो गया बिकॉज 2 साल तक आई हैव बीन लिविंग विद दैट गाय एंड देयर वाज नो एग्रेशन ऑल्सो so much of love that I had fought with everybody and got married. And he said, I want, मैं तो तेरे बाप से शादी करना चाहता था पर पैकेज मुझे गलत मिल गया. And I was like, what? And he was like, no, you are very ugly and इतनी मोटी है, भद्दी है, and I don't know. And I can't, it's like till now also I can freeze, like how can somebody change within a day? Not even a day, क्योंकि before that day engagement पर he was very romantic to me. And I froze and I just slept off nothing. But I could not tell anybody because जिद तो मैंने ही की थी शादी की. How could I tell? And I thought ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. But that was the exact thing my friends had warned me, that he is not marrying you. He wants to marry your family, family's name and your family's money. We went to honeymoon. There was also abusive behavior. And then there were incidences you can't imagine कि बंदे की जान भी जा सकती है. इंसान इतना कैसे गुस्सा आ सकता है, वो भी बिना ड्रिंक किए, बिना किसी बात के. हम लोग
शादी के 2 महीने बाद की बात है कि माय फादर हैड कम हियर एंड दैट डे आई सेड वी विल गो एंड मीट माय फादर फॉर हाफ एन आवर एंड देन वी कैन गो टू योर होम। और गाड़ी चल रही है, तब हम रोमांटिक गाने ही गा रहे थे दोनों, और एकदम से उसने गाड़ी की स्पीड की 120 पे, I-10 थी, और वो गाड़ी उसने ट्रक में डाल दी एंड गाड़ी का शीशा पूरा टूट गया और गाड़ी पूरी की पूरी स्क्वीज कर गई कि ट्रक के अंदर 120 की स्पीड पे चलते ट्रक में गाड़ी डाल दी कि आई डोंट नो हाउ आई एम अलाइव। एंड उसके बाद मेरे सीट बेल्ट थी तो बच गई बिकॉज शीशा पूरा टूट गया, सब कुछ टूट गया। एंड ही सेड कि लड़की का बाप है, वो मिलने आएगा, हम क्यों जाएं इस बात पर। आई वॉज शॉक्ड एंड दैट डे ऑल्सो आई डिडंट कॉल माई फादर कि समथिंग हैज हैपन लाइक दिस एंड आई जस्ट बस बहाना बनाया, पापा आज बिजी हूँ, ड्यूटी है, आज मत आओ। एंड द ब्रेकिंग पॉइंट केम दैट माई सिस्टर इन लॉ, जिसकी शादी के लिए 3 साल तक मैं पूरी सैलरी देती रही, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी शादी से पहले, शादी के बाद तो बात ही बंद कर दी, दे डिडंट कॉल मी फॉर हर मैरिज एंड आई वॉज शॉक्ड कि her in-laws met me in one hospital where my father-in-law was admitted for something and I was standing and in-laws आए और मुझे बोलते हैं आप कौन हो and I got shocked। मैंने कहा आप कौन हो? बोले 15 दिन बाद शादी है, हम उसके in-laws हैं और कार्ड्स मेरी गाड़ी में पड़े हैं, मेरा नाम नहीं है उस पे शादी के कार्ड पे, और मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं बट मुझे नहीं मालूम। आई वॉज लाइक कि मेरा हस्बैंड, माई हस्बैंड इज ओनली बिट्रेइंग मी, he is only not telling me, he could have told me that they don't want to call you and I am going, that was also acceptable, but ये कहना कि तू इतनी मोटी है कि बेइज्जती होगी इसलिए तुझे नहीं बुला रहे। My father said कि no, you have to adjust, just try, stay there, they will call you on the day of the marriage, don't come home। but उन्होंने तब भी नहीं बुलाया। एक दिन मैं छुट्टी लेने की बात की, he tore my clothes कि who will pay, पैसे कौन लाएगा घर में फिर। सो देन आई वेंट टू हॉस्पिटल और 1 घंटे में आई गॉट अ कॉल कि आई एम कमिटिंग सुसाइड एंड आई एम राइटिंग द नेम ऑफ योर फादर एंड नेम योर नेम दैट आई विल कमिट सुसाइड। आई रैन फ्रॉम कॉलेज, केम बैक, और मैंने देखा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते देवदास मूवी का सीन, मतलब आज तक मेरे दिमाग में वो सीन चलता है कि जैसे शाहरुख खान अपना संस्कार कर रहा है, एग्जैक्टली दैट वे ही वॉज सिटिंग देयर। और आई डोंट नो व्हाट मेडिसिन ही हैड टेकन और क्या पिया हुआ था, सब जगह वाइट पिलोज एंड ही वाज जस्ट डूइंग की सम पूजा कि मैं अपना संस्कार कर रहा हूँ और तेरे फादर का नाम लिख दूंगा और तेरा नाम कि तुम मेरे मरने का कारण हो। दैट डे आई गॉट वेरी वेरी स्केयर्ड। आई कॉल्ड हिज पेरेंट्स कि पापा ऐसे ऐसे है, वो बीमार हैं, उनको आप आ जाओ, एंड मुझे मारा। देन हिज फादर सेड कि तुझे क्या मारा, तेरे बाप को भी घसीट के मारेंगे, लड़की का बाप होता ही इस लायक है। एंड दैट टाइम आई ब्रोक माई silence and I was like just shut up ki how can you tell my father like this। on this point he called my dad कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, और मेरे डैड का मुझे फोन आया तो कैसे अपने फादर इन लॉ से बदतमीजी कर सकती है। एंड आई वॉज ऑलरेडी क्राइंग, वॉज ऑलरेडी इन फीवर एंड आई ब्रोक डाउन कि पापा मैं 4 दिन से बुखार में पड़ी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे इतना मारता ही है। दैट डे माई फादर वॉज लाइक ओ तू वाई डिडंट यू टेल फॉर 3 years। वो एक लास्ट सेकंड था, मैं उस घर में रही। उसी टाइम माय फ्रेंड केम, शी टुक मी आउट एंड इट वाज ओवर। उसके बाद वो आया मुझे मनाने 1 घंटे बाद मेरी फ्रेंड के घर, उसको बाहर निकाल दिया गया कि पुलिस बुला लेंगे एंड आई वेंट बैक टू माय हाउस। विद इन 15 days आई गॉट डिवोर्स्ड। ऑफ कोर्स लाइफ डजंट स्टॉप देयर एंड इंडियन सोसाइटी एनीवेज यू कैन नॉट, so I also prepared myself and then it was an arranged marriage, but with all the proper precautions that how much inquiry one can do was done, and it was in the family friend। My husband used to work with my brother in same hospital, my mother-in-law was mother's senior in a medical college, father-in-law knew my father, और मेरी मौसी का घर उनके घर के सामने, और सिर्फ 40 किलोमीटर उनका घर और हमारा घर, और वो चारों डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स, एक ही सोसाइटी, वी न्यू सो नाइसली।
एंड दे सेंड द रिश्ता, उनका रिश्ता आया। वो क्यों आया? क्योंकि आई हैड रिटन वन आर्टिकल। इमेजिन द आयरनी ऑफ माई लाइफ, द आर्टिकल वॉज रिटन ऑन हाउ टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग। वो आर्टिकल्स उन्होंने फ्रेम करा के भी रखे हुए थे अपने घर में। वी हैड अ 1 year ऑफ कोर्टशिप पीरियड। I had given him the warning also कि I am not very smart like you, because he was literally very very handsome in looks, and they were like no, it's okay, and age का हमें नहीं मैटर करता। So I was like okay, but वो तब हर हफ्ते the most romantic courtship and the most humble guy I have ever met कि I used to say हे भगवान श्री राम मिल गए हैं मुझे, कि सब पाप धुल गए जिंदगी के लगता है अब तो। not only me, even my parents, my far off relatives, doctors, whoever saw the guy, whoever knew about them will be like, oh my god, she is so lucky, that best family, all doctors with having nursing colleges, physiotherapy college, every college with having hospital and with so much of love। मेरा हस्बैंड अपने पेरेंट्स से भी लड़ जाता था अगर मेरे राइट्स की बात है, कि इफ दे आर सेइंग एनीथिंग टू मी, ही विल इवन फाइट विद देम कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मेरी वाइफ को। एवरी 3 months आई हैड सीन हिम गोइंग फ्रॉम 100 kgs to 40 kgs, to being the alcoholic to most sober person, टू बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर की दिल्ली से भी पेशेंट आ रहे हैं, टू बीइंग 3 महीने तक सिर्फ वीडियो गेम पे इंसान बैठा है। वो भी इस उम्र में इंसान सोच भी नहीं रहा है कि खाना कहाँ से आएगा या पैसे कहाँ से आएंगे। 12 बजे वीडियो गेम ऑन हुआ, सो वो बंद होगा 3 महीने बाद। एंड ऑल दीज वर वेरी शॉकिंग फॉर मी थिंग्स, बिकॉज आई वॉज अ वर्कहोलिक, बट they didn't allow me to work at all. Because there were 11 CCTV cameras. Imagine someone being surrounded by 11 CCTV cameras always, कि आपके चैम्बर में भी CCTV कैमरा है। That the moment a patient is also entering, I used to be scared the way I am sitting, the way I am talking, because my father-in-law will be sitting and watching that. And even द किचन हैड द सीसीटीवी कैमरा, कि मैं अगर 2 पानी की बॉटल भी ले रही हूँ उसी टाइम इंटरकॉम आ जाएगा कि वाई 2 water bottles, एंड आई हैड टू आंसर कि पापा रात को हम अलग अलग कॉर्नर पे पानी पीना होता है ना। सो दैट वाज द स्क्रूटिनी। आई हैड गॉन टू द पॉइंट कि मैं रोज छत पे खड़ी होती थी कि आई विल कमिट सुसाइड, एंड मैं श्वेता को कॉल करती थी, एंड दैट वाज द ओनली सेविंग पॉइंट। एंड देन बट रीजंस, इमेजिन आई वाज गोइंग थ्रू आईवीएफ ट्रीटमेंट। 3 IVF cycles I went through because they never allowed me the normal pregnancy. उनका एक ही जिद थी कि लड़का और twins, and they started giving some hormonal medicines, hormonal injections and IVF treatments, and they didn't pay a single penny for that, and nobody came to visit me also when I was in hospital. और इनफर्टिलिटी का स्ट्रगल मेरा जो था, दैट वाज, मतलब मेरे को एक नीडल से भी डर लगता था, इंजेक्शन से। मैं हेपेटाइटिस बी तक का इंजेक्शन लगवाने से डरती थी, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू टेक इंजेक्शंस, एंड आई इवन वेंट थ्रू हिस्टेरोस्कोपी व्हेन देयर वाज नोबडी इन द हॉस्पिटल विद मी, कि मेरा हस्बैंड आया और दारू पीने चला गया, एंड कि इन लॉज तो आते ही नहीं थे। डॉक्टर तक ने इतनी बार पूछा कि ये कैसा है, नोबडी कम्स विद यू, एंड माई पेरेंट्स कुड नॉट कम बिकॉज माई फादर एल्डर ब्रदर वॉज ऑन डेथ बेड दैट टाइम। और उसके बाद मतलब तब भी आई गॉट प्रेग्नेंट, एंड जब 3 बार प्रेग्नेंट हुई, तीनों बार ऐसा हुआ कि इतना मारना कि अबॉर्शन हो जाना। बट द रीजंस कि उसको ड्रिंक एंड ड्राइव करना है, एंड आई नेवर रिफ्यूज कि डोंट ड्रिंक। आई यूज टू से यू पार्टी विद योर फ्रेंड्स, बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, दैट इज रिस्की। बट दैट वॉज द नॉर्म ऑफ द फैमिली। अगर किसी ने अपने फादर को भी ऐसा ही देखा है जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, जो अपनी वाइफ को मार रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा? अपनी मैंने तक देखा है कि मेरी फादर इन लॉ मदर इन लॉ को मार रही हैं, एंड मैं शॉक में चली जाती थी। और मैंने ये तक देखा है कि मेरा हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को मार रहा है। मुझे तो मारा ही है, उनको भी मार रहा है। और मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से गुंडों की तरह लड़ रहे हैं जैसे मूवीज में, एंड आई कुड नॉट, आई वॉज शॉक्ड, एंड विद इन 5 minutes दे ऑल विल बी नॉर्मल, बिकॉज राजा बेटा सिंड्रोम जो होता है कि ये तो हमारा राजा बेटा, ये कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बट देन आई गॉट प्रेग्नेंट, आई वेंट बैक। 3 महीने आई वॉज एट माई होम।
आई वेंट बैक ऑन द डे, ऑब्वियसली एवरीवन इज हैप्पी कि 3 बार आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी हो गई है। और मैंने अपने बेडरूम में देखा स्मॉल डस्टबिन फिल्ड विद यूज्ड कॉन्डम्स। दो हम लोगों को एब्सटिनेंस था 1 साल से, एंड 3 months आई वाज एट माय मदर्स होम एंड देयर वर यूज्ड सिरिंजेस आल्सो। बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या था, मैंने तब भी शक नहीं किया, मैंने तब भी नहीं पूछा क्यों है, बिकॉज आई न्यू लाइक masturbation इज अ नॉर्मल थिंग, मे बी ही यूज्ड इट फॉर masturbation, दो वेरी रेयर पीपल यूज इट फॉर masturbation, बट स्टिल आई डिडंट क्वेश्चन ओनली, मुझे आज तक भी डाउट नहीं हुआ। एंड आई जस्ट टोल्ड कि मेरे हस्बैंड आए लंच के लिए, मैंने उनको बोला ऋषभ आप ये तो कॉन्डम्स और ये डस्टबिन खाली तो कर देते। एंड सिर्फ इसलिए बोला मैंने कि अरे ये डस्टबिन खाली कर देते कि नर्सिंग स्टाफ को मैंने दिया, अच्छा नहीं लगता, 20 साल की लड़की, मुझे खुद को शर्म आ गई, मैं वापस ले लिया। एंड ही जस्ट टुक आउट द इंटरकॉम की तार, दरवाज़ा बंद किया, एंड जो उसने मुझे मारना स्टार्ट किया, आई डोंट नो कि क्या हुआ, मेरे अबॉर्शन हो गया, आई एम ब्लीडिंग फ्रॉम डाउन एंड देन मेरे सिर से ब्लीडिंग हो रही है अनस्टॉप, और पैरालिसिस हो गया है, मतलब पूरा 40 ml ब्लड कलेक्ट हो गया है। एंड आई एम क्राइंग शाउटिंग, बचने के लिए मैं दरवाज़ा खोला है, मेरे इन लॉ सामने खड़े हैं, सामने कमरे में। अब एक घर में 3 ही तो कमरे हैं, इतना भी बड़ा महल नहीं होता किसी का कि ना सुने। और वो आए हैं, उसके बाद भी वो खड़े देख रहे हैं, एंड आई एम ब्लीडिंग, ही इज़ बीटिंग मी। और मैं आज तक यही सोचती हूँ कि ऐसे कैसे इंसान हो गया कि वो सामने किसी एक लड़की को मरते हुए देख रहा है, और वो भी जो प्रेग्नेंट है, एंड कुछ कह ही नहीं रहा। एंड आई वाज, मतलब मुझे नहीं मालूम, मैंने अपना शीशे में फेस भी नहीं देखा क्योंकि मेरे ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग हो रही थी, और फेस पूरा टेढ़ा हो गया था, सब स्वेलिंग और नीचे भी ब्लीडिंग, मतलब एबॉर्शन भी हो गया सब मुझे। और दैट डे नोबडी वाज देयर, मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली आए हुए थे, एंड आई फोन तो एनीवेज दे हैड, वो पहले ही छीन लेते थे और दरवाजे बंद कर देते थे कि मैं अपनी मौसी के घर ना चली जाऊं। एंड आई वाज, आई डोंट नो, मतलब वो देख ही जा रहे हैं, फिर उन्होंने पता नहीं, उसके बाद मेरा हस्बैंड खुद ही रुक गया, उन्होंने तो नहीं रोका, वो थक गया होगा या उसको लगा होगा कि ज़्यादा हो गया। एंड देन माय फादर इन लॉ केम, एंड उन्होंने उसको शराब का एक बैग भर के मंगा दिया कि तू बेटा शराब पी ले और शांत हो जा, कहीं जाना मत। मैं आज तक ये सोचती हूँ कि कौन से पेरेंट्स ऐसा करते हैं। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ हर 5 मिनट में आकर के मुझे बोल रही हैं कि कुछ खाने को बना दे, वो खाली पेट शराब पी रहा है, तेजाब बन जाएगा उसके। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कि मेरे सिर से खून निकल रहा है, मुझे किसी ने ये तक नहीं बोला कि बर्फ़ लगा ले या पट्टी कर ले या कुछ कर ले, और मुझे ये बोला जा रहा है कि खाली पेट शराब पी रहा है और खाना बना दे। मैं आज तक भी वो सीन नहीं भूलती। और उसके बाद रात तो पूरी रात मैंने ऐसे ही काटी, वो दिवाली का दिन था। दिवाली की पूजा में भी उन्होंने मुझे बिठा लिया, और आई कुड नॉट टेल एनीबडी बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स वहाँ थे नहीं, मेरे ब्रदर इलेक्शंस लड़ रहे थे, एंड मेरे को समाज का बहुत डर था। ये 3 साल सिर्फ मेरा अपना डर था कि मैं उस शादी में रही, कि बेइज़्ती होगी, बेइज़्ती होगी, बेइज़्ती होगी। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन दिया, मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा आप दिल्ली से आ गए या नहीं, और बस आ जाओ। आई डिडंट टेल हिम बिकॉज़ मुझे ये था कि एनी फादर विल बी शॉक्ड। एंड एकदम से मेरे पेरेंट्स एंटर किए, मैं घर में थी, एंड माय मदर इन लॉ केम हैप्पीली कि अरे अनिंदा पापा मम्मी मिलने आए हैं, दिवाली का कुछ देने आए होंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं बाहर गई, एंड आई हैड नेवर सीन माय फादर क्राइंग सो मच, जो मैं आज तक विश्वास नहीं कर सकती। मतलब मेरा फेस, मेरे फादर बोले कि तुमने मेरी लड़की को कर क्या दिया है कि फेस ही टेढ़ा हो गया है। हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला परमानेंट डैमेज हो सकता है, एमआरआई कराओ, परमानेंट आई डैमेज या परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करवाया, 40 ml ब्लड कलेक्ट, 3 महीने ले गए मेरे फेस को ठीक होने में। और उन लोगों को जब बोला, तो उनका जवाब था कि हमने शादी के अगले दिन ही बताया था इसमें गुस्सा है। तो मैंने कहा आपने ये कहा था गुस्सा है, पहली बात शादी के अगले दिन, पर ये थोड़ी कहा था जानवर है। एंड मोर देन दैट, उन्होंने कभी ये गलती ही नहीं मानी, वो ये बोलते थे तो क्या हुआ मारा है तो, कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना हैंडसम है बच्चा, तो क्या हुआ मारा है तो। आई डोंट नो, मतलब उसके बाद मैं आई, और पर आज तक भी मैं वो भूल नहीं सकती कि,
और इतनी सी बात पे और इस बात का जवाब कि क्यों मारा, कि वो बोलता है कि मुझे ये डर लग गया कि तुझे लगा होगा कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, किसी और से अफेयर चल रहा है तो मेरे पे शक करेगी कि कॉन्डम्स मिल गए। फिर मैंने पॉडकास्ट देखने स्टार्ट किए कि स्टोरी टेलिंग से। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे भेजा कि भाई ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको सपोर्ट नहीं है और वो अपनी लाइफ बना रही हैं। देन आई थॉट कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस ही ये है, इसलिए बार बार हुआ मेरे साथ, दैट मैं लोगों की आवाज़ बनूं और लोगों को हेल्प करूं। सो व्हेन आई लेफ्ट दैट हाउस 9th May 2024, उस दिन के बाद मैं एक भी दिन नहीं रोई, क्योंकि मुझे नफरत है विक्टिम शब्द से। और क्योंकि मैं विक्टिम नहीं हूँ, विक्टिम वो लोग हैं अपनी गलत सोच के। विक्टिम हमारा समाज है, विक्टिम हमारे सोसाइटी, हमारी जुडिशियरी, सब विक्टिम है हु थिंक दैट गर्ल्स आर मेंट टू बी बीटन। आई स्टार्टेड वर्किंग दैट डे ओनली कि मुझे जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए ही काम करना है और ऐसा काम, ये सब पढ़ना है, सीखना है कि नो गर्ल शुड सफ़र, नॉट इवन अ सिंगल गर्ल शुड सफ़र। बट देन आई थॉट उससे इम्पॉर्टेंट है कि मेन शुड बी एंगेज्ड एज एलिज। तो यूनाइटेड नेशंस का मैंने कोर्स किया पहले, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसका कैंपेन रहता है ही फॉर शी। दैट इज कि ही फॉर शी उसकी MARD मर्द करके फरहान अख्तर ब्रांच चलाते हैं। मैंने उनकी ब्रांच से भी बात की कि मैन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि जब लड़का बोलने लगेगा उस चीज़ में आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज कि हाउ टू टीच। देन आई गॉट द वुमेन रेजिलियंस अवार्ड बाय इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। दैट despite going through all this, I am standing straight is also a miracle. So in the end I will just say that speak with courage, heal with dignity, lead with the courage and dignity, and bring the change. And when survivors rise, change comes, and when men come together with us, with this change will become unstoppable. Because feminism is not a fight between me, men and women. सेक्सेस के बीच की फाइट नहीं है, हम लोगों को सबको साथ चलना है। एंड आई रियली रियली विश दैट even if one girl can be saved from this, I will be grateful.